Good morning, everyone. Thank you for joining today's panel discussion on Indian knowledge system pathways to a successful future. First, let me take a privilege to introduce our esteemed panelists today. We have Dr. Roshni Srivastava with us, Assistant Dean Academics, United University Prayagraj. And as a second panelist, we have Dr. Prashant Shukla, who is heading the Faculty of Computer Science and Engineering, United University Prayagraj. Before starting the discussion, first let me set the theme of the today's discussion. The purpose of discussion is to explore how Indian knowledge system can contribute in maintaining a successful and sustainable future by blending the ancient knowledge with the modern practices. So, to start our discussion, let's set the theme by understanding uh, how, what Indian knowledge system is. I request both the panelists to give your opinion on this particular topic. What Indian knowledge system is and how it has evolved over the time and how it is relevant in today's competitive world. Madam. Basically, Indian knowledge system a very great initiative which has been taken place by NEP 2020 to get it inculcated in our syllabus, in our curriculum. Basically, Indian knowledge system is nothing new. Every person every time is pursuing the same practice. Whatever culture, whatever shastra, Vedas, Dharma, Ahimsa, whatever we have learned in our ancient periods, we are learning still. We are learning in the current scenario, current phases as well. But why the need has been generated by NEP to get it involved in our syllabus is the teachings, the spirituality, the empathy, what we have in our basic cultural system is lacking in our today's academic sphere. So to involve that, we must have Indian knowledge system with us. Sir. Well, I would choose to speak in Hindi because I don't think that when we are talking about Indian knowledge system, we should use English. This is my personal choice, by the way. तो अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहले तो मेरा शब्द से ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. जब हम इंडिया को भारत कह रहे हैं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात क्यों करते हैं? भारतीय शिक्षा पद्धति बोले? क्या उसकी ज़रूरत है? NEP 2020 तो ये बात कह रहा है, लेकिन जितने तथ्य हमको मिल रहे हैं सब अंग्रेजी भाषा में मिल रहे हैं. कोई भी हमारी हिंदी भाषा में नहीं मिल रहा या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में नहीं मिल रहा है. हम किस चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी भी डाउट में हूँ इस बात के लिए. बस इतना कहना चाहूँगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत इवॉल्व हो चुका है. हम उसको पीरियड्स में बांट नहीं सकते हैं कि 3000 साल पहले अगर वेद बने तो वही आज के समय के लिए हमारे काम के होंगे, या इन्वेडर्स जब 1100 साल पहले से हमारे देश में आने लगे और उन्होंने काफ़ी कल्चर हमारा बदला, तो उस समय जो शिक्षा पद्धति थी वो ज़्यादा सही थी या गलत थी? मेरे हिसाब से आज जो हम कर रहे हैं वो शायद आज की ज़रूरत है. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को कितना और किस कोशेंट में, किस लेवल पर इंट्रोड्यूस करना है, वो अभी भी एक सोचनीय विषय है. थैंक यू. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर ने जैसे बात की कि भारतीय शिक्षा पद्धति की बात की जाए तो भारतीय शिक्षा पद्धति में ये देखा गया है कि एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी ये इंटरकनेक्टेड है, डीपली रूटेड है. तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने भी बात किया धर्म की, कर्म की, अहिंसा की, आपको क्या लगता है कि ये हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन टुडेज लीडरशिप? अगर इनको इनकलकेट किया जाएगा तो लीडरशिप को कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और इसका जवाब मैं देना चाहूँगी गीता के एक श्लोक से, जिसे हम कहते हैं स्वधर्म निधान श्रेयः, स्वधर्म निधान श्रेयः पराधर्मो भयावह. बेटर or beyond the dharma of yours, let the dharma of yours fail, better to succeed another's. किसी और के धर्म के बारे में सोचो या उसे सक्सीड करने से अच्छा है पहले खुद के धर्म के बारे में सोचो. और धर्म की, एथिक्स की, जैसा आपने क्वेश्चन किया, धर्म और एथिक्स की सबसे अच्छी शिक्षा हमें दो महापुरुषों से मिलती है. एक राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और एक कृष्ण. Ram has pursued the dharma in his Raj Dharma, political leadership,
जिन्होंने एथिक्स की परिभाषा हमें सिखाई, सैक्रिफाइस की परिभाषा हमें सिखाई, ऑनेस्टी की परिभाषा हमें सिखाई। कृष्ण जो सिचुएशनल लीडरशिप कहलाते हैं, वाई ही इज टर्म्ड एज सिचुएशनल लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ये सिखाया दैट यू डू नॉट बी इन डिलेमा, आप किसी भ्रम में ना रहें, किसी डिलेमा में मत रहें, आपका जो धर्म है वो करें, क्योंकि आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको सोसाइटी और उनकी भलाई के बारे में सोचना है। एंड द थर्ड इज द मेट्रो मैन, विच एवरीवन नोज, मेट्रो मैन ई श्रीधरन, द मेट्रो मैन हु इज नोन फॉर द राज धर्म इंटीग्रिटी, बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने बिना ब्राइब लिए, बिना इन्फ्लुएंस के, बिना डरे ऑनेस्टली अपना काम किया। एंड नाउ योर पीपल हैव दैट मेट्रोज इन योर लाइफ which has made your work so easy. So yes, it is very much required to have this Indian knowledge system in us. यही ethics, यही efficiency, यही honesty जो हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने की, वो हमें चाहिए। well, मेरे लिए धर्म का मतलब आप जिस तरह से पूजा करते हैं वो नहीं है। मेरे लिए अहिंसा परमो धर्म जब बोला जाता है तो उसका मतलब नॉन वायलेंस से है। तो अगर नॉन वायलेंस एक धर्म की तरह ट्रीट करा जा रहा है तो इसका मतलब वो एथिक्स की ही बातें कर रहा है। धर्म का मतलब पूजा पद्धति कभी नहीं है मेरे लिए। तो धर्म वर्ड को तो मैं अभी यहाँ से हटाना चाहूँगा। हाँ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि योग है जो हमारे एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट था, उसको अब हम लोग माइंडफुलनेस नाम दे रहे हैं, यानी कि हम लोग इनकैप्सुलेट कर रहे हैं पुरानी चीज़ को ही नए कवर के साथ। तो वो चीज़ें हैं और वो चीज़ें हमें करने की कोशिश करनी चाहिए इन सच अ वे कि वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा न महसूस करे कि ये एक संप्रदाय से जुड़ी है और ये दूसरे संप्रदाय से जुड़ी है। हम लोगों को अगर कुछ करना भी है तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम को, बल्कि मैं इसको करेक्ट करूंगा, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपने आज में इनकलकेट करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के लिए वो स्वीकार्य हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ राम की बात करेंगे तो शायद कोई और अपने नायक को ले आएगा। हम कृष्ण की बात करेंगे और कहेंगे कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ा दी जाए तो कोई कहेगा नहीं नहीं, ये मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है, मैं गीता नहीं पढ़ सकता हूँ। क्यों गीता नहीं पढ़ सकते हो भाई? क्योंकि गीता में अच्छी बातें लिखी, तुम्हें पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक स्टूडेंट की भी चॉइस होती है कि उसे ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि चोरी अच्छी चीज़ है ये कोई नहीं कहता है। तो मेरे हिसाब से एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को डायरेक्टली हम यहाँ पे ड्रैग करके नहीं ला सकते। वी हैव टू मोल्ड इट इन सच अ वे सो दैट हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो आसान हो जाए अपने अंदर लाना, अपनी पर्सनैलिटी में लाना। तभी वो जो सक्सेस की आप बात कर रहे हैं कि बच्चा सक्सेसफुल कैसे होगा, शायद अगर उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आ जाएं तो बुक्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, लिटरेचर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, अगर उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें आ जाती हैं तो मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं भी इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी, ये सर का पॉइंट बहुत अच्छा था कि हाँ कृष्ण नहीं, लेकिन कल मैं अपने बेटे को जब पढ़ा रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू हिज लिटरेचर एंड ही वॉज टीचिंग मी कि कैसे हुमायूं ने कैसे अकबर ने कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जो वाकई में बहुत गलत थी, जैसे जजिया कर, विच वॉज वेरी अनएथिकल था ना, वॉज बियॉन्ड द एथिक्स। सो क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमें वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए जो जस्ट और रीजनेबल और फेयर हो। तो बिल्कुल सर के वर्ड्स को मैं भी एक्नॉलेज करूँगी कि हमें लोगों को वो देना चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को ऐसी नॉलेज देना चाहिए विच मस्ट बी इंटेलेक्चुअल, विच शुड नॉट डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट। थैंक यू। माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट सर, जैसे आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बी इट मेडिसिन फील्ड, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और एनी अदर फील्ड, इंडिया हैज़ अ लार्ज कंट्रीब्यूशन इन दीज फील्ड्स। तो आपका जो बात कर रहे हैं हम लोग इंडियन एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी भी आप फोकस कर रहा है दैट स्टूडेंट शुड ऑप्ट द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और कई कोर्सेज को भी आपस में मर्ज कर दिया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टूडेंट्स को दी जा सके। तो हम एंशिएंट नॉलेज को इंटरडिसिप्लिनरी, मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो जैसे कि सब बच्चों को भी पता होगा, यहाँ ऑडियंस जो बैठी है, हम सभी जानते हैं कि गणित की बात करें तो हम लोगों के पास बड़े नाम हैं,
है ना, आर्यभट्ट, लीलावती जिन्होंने लिखी। हम मेडिसिन की बात करते हैं तो भी हमारे पास सुश्रुत संहिता से लेकर चरक संहिता तक है, जहाँ पे शल्य क्रिया की बात हो रही है और जहाँ पे जो है आपके चर्म रोगों की बात हो रही है। हम उनको क्यों लाना चाहते हैं? क्या किसी ने वाकई में उनमें ऐसी चीजें देख ली हैं जो आज के समय के लिए यूजफुल हों? हम क्यों वो शल्य क्रिया इस्तेमाल करना चाहते हैं जो 3000 साल पहले लिखी गई या 2000 साल पहले लिखी गई? आई एम नॉट राइट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ ईयर्स। क्या वाकई में चर्म रोग आज भी उसी तरीके के होते हैं जो 1000-1500 साल पहले होते थे? क्योंकि हमारा वातावरण भी बदला है। तो अगर हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो हमारा इवोल्यूशन इतना हो चुका है कि आज की डेट में हम ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। जो पहले था, जो पौराणिक कथाओं में था, जो पुराणों में था ना, वो कहानियां हैं। लेकिन आज जब उसे हम हकीकत बना चुके हैं तो फिर से ये बताने का क्या मतलब है कि पुष्पक विमान जो था वो पहला विमान था, है ना? वो लेट अस गिव द क्रेडिट टू द राइट ब्रदर्स, आई गेस। तो हम क्यों चाहते हैं कि हम वो सब लेके आए? जीरो दिया मेरे भारत ने जीरो दिया, उसके बाद दूसरों ने बहुत कुछ दिया, उसके बाद बीज गणित किसी और ने दे दी, ठीक है? तो हम क्यों ये चीज चाहते हैं? हम ओवरऑल जब when we say that think global, act local, let's try to think global. Why should ourselves restrict to India only? Why don't we see China, जो आज भी अपनी भाषा में रिसर्च पेपर्स लिखती है, टेक्निकल रिसर्च पेपर्स लिखती है, और वो ट्रांजैक्शन पेपर्स बन जाते हैं, वो नेचर में छप जाते हैं, और हमारे पेपर जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं, जिनके रिव्यूअर्स इंग्लिश पीपल होते हैं, वो नहीं छपते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अपनी रूट्स को पकड़ के रखा है तो शायद हमारे नेबर ने रखा है, वो भी उपनिवेश था ब्रिटेन का, उसके ऊपर असर नहीं आया, हमारे ऊपर बहुत असर आया, लेकिन हमारे ऊपर पॉजिटिव असर भी बहुत आया है। अब हम कूप मंडूप नहीं है चाइना की तरह, अब हम ग्लोबल अरीना पे हैं। कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम की वजह से नहीं, किसी ने वेद पढ़ लिया सिर्फ इस वजह से नहीं, या पुराण पढ़ लिया इस वजह से नहीं। हमारा लीडर जो है आज देश का, वो हर तरह की बातें करता है, हर विषय पे बातें करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को सिर्फ पुराना पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो कि 3000 साल पहले भारत कितना इवॉल्व था। आज की हकीकत में जियो। मैं सर की बातों से थोड़ा डिफर करूंगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एज आई टोल्ड यू कि जब भी मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, ही इज़ इन स्टैंडर्ड 7, और बहुत नई नई चीज़ें मुझे सीखने मिलती है। हम आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल रेन कराई गई है दिल्ली में, ठीक? क्यों? क्योंकि इतना क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है क्लाइमेट इफेक्ट? बिकॉज वी आर लैकिंग आवर एथिक्स। हम अपने एथिक्स को लीक कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज नहीं कर रहे हैं। ये हमें सिखाना पड़ रहा है। हमारे वेद तो हमेशा यही कहते थे कि आपका जो इलाज है वो हर्ब्स में है। यू हैव हर्बल मेडिसिन विथ यू। हर्ब्स का इलाज है आपके पास, तो हर्ब्स आपको उगाना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो प्लांट्स। बावली सुनी होगी आपने, उग्रसेन की बावली। ये बावली का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज दिस बावली? वाटर हार्वेस्टिंग। कहाँ से सीखा आपने बावली का कॉन्सेप्ट? अगर आप बावली नहीं पढ़ेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न वाटर हार्वेस्टिंग। यू हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री, यू हैव टू गो बैक टू योर इंडियन नॉलेज सिस्टम। आपको जीरो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसके आगे डेसिमल लगा के पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड। Yes, it is very true that we must accept the reality कि Wright brothers ने किया। We must not go with hypothetical factors, but जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू हमें मिल रहा है, जो कभी मैनेजमेंट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी जनरेट हुई? जब फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, तुगलक ने किया था, कॉपर और ब्रॉन्ज की लेकर आए थे सिक्के, क्योंकि सिल्वर सिक्का नहीं वो बेयर कर पा रहे थे। फाइनेंशियल लॉस को बचाने के लिए कॉपर लाना पड़ा था। तो ये कैसे सीखेंगे आप? हाउ यू विल लर्न दिस इकोनॉमी until and unless you will learn the Indian knowledge system. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। मेरा कहना ये नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, मेरा कहना ये है कि आपको चॉइस मिलनी चाहिए। क्योंकि जब आज की डेट में आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो ना, तो आपके पास वैदिक गणित भी आती है और जापानीज मैथमेटिक्स भी आती है। तो दिस मस्ट बी योर चॉइस कि आपको वैदिक गणित पढ़नी है या जापानीज, और उसके बाद लेट द पेपर सेटर डिसाइड कि वो कौन सी वाली गणित में क्वेश्चन पेपर देगा। वील थिंक इन दैट डायरेक्शन ओनली देन।
ये हमारे और आपके डिस्कशन से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, क्या वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग एज इट इज इनकॉर्पोरेट करें अपने एजुकेशन सिस्टम में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्या ऐसे लिया जाए, या सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। किसको नहीं पता है कि चोरी खराब चीज है? सबको पता है। सही बात है। अर्थव्यवस्था पे जो तुगलक ने किया कि वो ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज के कॉइन्स ले आया, सोने चांदी को बियर नहीं कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि सोने चांदी को बियर नहीं कर पाए, ये सही बात है। अर्थशास्त्र उससे कई साल पहले लिखी गई थी, कौटिल्य ने भी काफी कुछ लिखा है उसके ऊपर, उससे बहुत पहले। एज इट इज इम्प्लीमेंटेबल है। आज की डेट में तो हम करेंसी हर चौथे पांचवें साल चेंज कर देते हैं। 8 नवंबर डिमोनेटाइजेशन का दिन कौन भूल सकता है? So my next question is that since we are talking about Indian knowledge system, तो बात अधूरी रहेगी, we will not talk about the Gurukul system. So we have seen that in the Gurukul system, the emphasis was given on to the holistic approach, holistic learning. True. Holistic की जब बात करते हैं तो it is a learning related to the mind, body and spirit. So let me ask you a question that how these principles can be integrated in today's modern practices or modern education system. तो अगर आप इस पर कुछ बता सकें कि गुरुकुल के उस होलिस्टिक लर्निंग को हम आज कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ओके। गुरुकुल की जो सोच है वो आज हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि गुरुकुल की एक सोच थी कि एक व्यक्ति, एक बच्चे को, नाउअडेज द चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली कंप्लीटली, they could not detach themselves from the family, but earlier in Gurukul periods they were taught to beg for every necessities what they must have in their life. उन्हें भिक्षाम देही ये सिखाया जाता था, इसीलिए नहीं कि उन्हें इंसल्ट करे, उन्हें डिफेम करे, डिमीन करे, बल्कि उन्हें इसलिए सिखाया जाता था कि आगे आपकी लाइफ में आपको हर एक वो एलिमेंट जो आपको एक पॉलिटिकल लीडर बना सकते हैं, आपको एक इंटेलेक्चुअल लीडर बना सकते हैं, उस चीज़ को सिखाने के लिए तैयार करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं फिर से कृष्ण जी का एग्जाम्पल लूँगी। कृष्ण जी के सखा सुदामा, कृष्ण एक रॉयल किंग थे, सुदामा एक नॉर्मल फैमिली के थे, लेकिन आज भी उनकी दोस्ती की गाथा आप लोग पढ़ते हैं। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुकुल। लेकिन बिकॉज ऑफ अ लॉ पर्सन आई वेरी वेल नो कि लॉ ने इसकी लड़ी है ग्लोबल एस्पेक्ट में। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक केस है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ब्लैक पीपल वर नॉट मेड टू सिट विद द वाइट पीपल टू टेक एजुकेशन। क्यों? अब्राहम लिंकन ने उसकी लड़ाई की, महात्मा गांधी जी को ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था। तो हम गुरुकुल में यही सिखाते हैं कि देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, आपको खुद के लिए कार्य करना है, सेल्फलेस बनिए। अपने होलिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल करा है। मुझे ऐसा लगता है हम सब कहीं ना कहीं से कुछ लिखा हुआ ट्रांसलेट कर रहे हैं, या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाया वो देख रहे हैं। लिटरेचर पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगी कि, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, जब मैं अंग्रेज़ी को प्रेफर ना करके हिंदी बोल रहा हूँ तो संस्कृत तो एलियन लैंग्वेज हो गई आज हमारे लिए, तो शायद हम सही समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है और उस वक्त के लिए वो ज़रूरत थी या नहीं थी। क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो सही नहीं है। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा वो हमें समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है जो होलिस्टिक अप्रोच था वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि पहले गुरुकुल में जाना आपकी चॉइस थी। एक राजा अपने बेटे को भेजना चाहता है, या कोई जाति विशेष का व्यक्ति अपने बेटे को भेजना चाहता है किसी गुरुकुल में, तो भेज रहा है। वशिष्ठ जी के यहाँ राम जा रहे हैं लेकिन सब नहीं जा रहे हैं। संदीपन मुनि के यहाँ कृष्ण और सुदामा जा रहे हैं लेकिन सब नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब जा रहे हैं तो वहाँ पे शास्त्र भी सीख रहे हैं और शस्त्र भी सीख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो होलिस्टिक अप्रोच था। आज हम लोगों को कहा जाता है कि हमको नैरो डाउन करना है, अपने आप को एक डायरेक्शन पकड़नी है। शायद उस वक्त की वो ज़रूरत थी। आज की ज़रूरत ये है कि अगर हमको इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हम अपने आप को नैरो डाउन करके एक चीज़ का, एक कला का एक्सपर्ट बनाएं। जब एक कला का एक्सपर्ट बना लेंगे तो शायद 5 साल बाद उसमें इतना एक्सेल कर लें कि हम दूसरे में वेंचर कर सकें।
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में वैसा नहीं हो सकता जो होलिस्टिक अप्रोच दे। हाँ, जो हम लोग जैसे दाल में नमक के जैसी ज़रूरत है या मसालों की जैसे ज़रूरत है, औषधि के रूप में हमारे खाने में जो इन्वॉल्व है, थोड़ा थोड़ा परोस के दें। ये बच्चे की चॉइस होने दें कि उसको मिर्च पसंद है या ज़्यादा नमक पसंद है या चीनी पसंद है। और आज शायद उतना होलिस्टिक हम कर ही नहीं सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल चैलेंजेस। आप अभी देख रहे हैं कि नाउ डेज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो लेट्स टॉक ऑन सर्टेन पॉइंट ऑन टू द सस्टेनेबिलिटी। Indian knowledge system has contributed a lot into the water preservation, biodiversity, water management, इन सब की organic farming, इन सब की बात की हुई है। तो how we can adapt these practices to reduce these ecological challenges nowadays? This is the next question. Okay. Ecological challenge means we have to be very environment friendly. जैसे मैंने पहले ही बाहुली का एग्जाम्पल दिया, बट रिसेंट का एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉज ईटिंग पिकल, अचार खाते हैं हम लोग। लाइक आई होप मेनी ऑफ अस जस्ट ईट अचार जस्ट फॉर अ टेस्ट। हम पिकल टेस्ट के लिए खाते हैं। अचार टू हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न। अचार खाना भी टेस्ट के लिए नहीं होता है, इट हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न। हमारे जो पूर्वज बना के गए हैं वो इसलिए बना कर गए हैं कि उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। इट हैज़ सम गुड बैक्टीरियाज विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, गट के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एज सर हैज़ एक्नॉलेज, गट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो if we will not read our ancient scripture, though it is written by Vedas, though it's written by any invader, किसी ने भी लिखा हो, लेकिन अगर उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी कोई चीज़ लिखी है विच इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, बावली का बनना, ऑर्गेनिक फार्मिंग होना, योग का आना। आज हम योग का ट्रीटमेंट मस्ट करते। इवन इफ यू गो टू एनी एलोपैथी डॉक्टर, ही विल सजेस्ट यू कि आप मेडिसिन खाने के बाद वॉक करिएगा, आप मेडिसिन खाने के बाद ब्रीद इन करिएगा। वाई इट इज सजेस्टेड? बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे आप जब तक उस प्योर ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में नहीं लेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू। और ये सीखने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि हमारे एनवायरमेंट में और हमारे एंशिएंट एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस था, वाई वी आर अनहेल्दी एंड दे वर हेल्दी। ये अडल्टरेशन का रीज़न क्या है और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वेल, आपने इकोसिस्टम की बात करी है, तो पहले तो अगर हम एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम में जाएं तो गुरु बोलता था, शिष्य आत्मसात कर लेता था। लिखने का सिस्टम बहुत लेट आया। फिर आया सिस्टम भोजपत्र का। दीवारों पे खींचना तो आदिमानव कर गया था, लेकिन लिखने का सिस्टम आया भोजपत्रों का, जो मंदिरों की लाइब्रेरीज़ में रखे जाते थे। नालंदा में भी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी जो हम लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से, लेकिन मंदिरों में रखने का सिस्टम था। भोजपत्र कहाँ से आ रहा है? एक पेड़ से आ रहा है। आज के पेजेस कहाँ से आ रहे हैं? पेड़ से आ रहे हैं। मैं इसको राजनीति की तरफ ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों एजुकेशनिस्ट के ऊपर, क्यों शिक्षाविदों के ऊपर ये प्रेशर है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को इम्बाइब कराइए, जबकि हम अपने प्रयागराज में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जिसमें 65 करोड़ लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही कोट किया गया है, 65 करोड़ लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं, और इलाहाबाद से हज़ारों हज़ार पेड़ काट दिए जाते हैं, और उसके बाद टीचर्स से कहा जाता है या एकेडमिशन से कहा जाता है कि अब इकोसिस्टम आप सुधरवाइए। क्यों? अगर ये सरकार हम पे दबाव डाल रही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को आपको रखना है अपने यहाँ, तो आप पहल करिए, हम आपको देख के आपके पीछे पीछे चलेंगे भाई। सर माय लास्ट क्वेश्चन, मैडम, लास्ट क्वेश्चन इज दैट जैसे कि इंडिया का आर्ट, कल्चर और फिलोसफी काफ़ी रिच रहा है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस कल्चरल हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल विजडम प्ले रोल इन शेपिंग अ ग्लोबल लीडरशिप। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ग्लोबल लीडरशिप? बहुत बढ़िया सवाल है, क्या मैं पहले आंसर कर दूँ? श्योर। तो अब फिर एंशिएंट से उठा लेते हैं हम लोग। सामवेद संगीत की बात करता है, कितने लोग सुनते हैं आज क्लासिकल म्यूजिक? यहाँ हाथ खड़ा करने को अगर मैं बोल दूँ तो कितने लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल कहाँ से आया और कर्नाटिक क्लासिकल कहाँ से आया? कितने लोग जानते हैं कि मंदिर की सभ्यता थी? नहीं, बहुत कम लोग, ना के बराबर।
फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी, बॉलीवुड के ऊपर कोई रोक नहीं है, क्योंकि चल छैया छैया सबको सुनना है ना, और आज सैयारा सबको सुनना हो गया है। जो 3 दिन में बन गया गाना वो इतना हिट हो जाता है, और जो 3000 साल पहले लिखा गया है उसे कोई जानता नहीं है। वो गाना लिटरली 3 दिन में बना है, आप उसे हिट करा रहे हैं, रो रहे हैं उसके लिए जाकर के, आपकी एज के लोग। इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात आपके लिए कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ पढ़ना है, आपको अंदर अपने इनकलकेट करना है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सबकी है, एकेडमिशियंस की नहीं। हम अपने यहाँ रखें एजुकेशन सिस्टम में किसी चीज़ को एक लिमिट में, एक कोशेंट में। बीटेक में कर दिया या एमबीए में कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे डाउट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बार किया गया था, ठीक, कंपल्शन हटा दिया गया, उसके पीछे कोई कारण नहीं दिया गया कंपल्शन हटाने के पीछे। वो तो सबको पढ़ना चाहिए, क्यों कंपल्शन हटा दिया भाई? आ रहा है पुराने समय से अगर कोई चीज़, तो उसको पढ़िए आप सामवेद से, उसमें इंटरेस्ट लीजिए। या जो संगीत विद हैं आज, क्या उसे वो आपके लिए, आपके कान के लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, बना सकते हैं। आप सुनिए कौशिकी चक्रवर्ती को, पंडित अजय चक्रवर्ती को, तो आपको शायद वो म्यूजिक भी अच्छा लगे। आपको चॉइस कम मिली है, आपको सिर्फ बॉलीवुड दिखाया जा रहा है, टॉलीवुड दिखाया जा रहा है, हॉलीवुड दिखाया जा रहा है, कॉलीवुड दिखाया जा रहा है। ये वुडन है, ठीक है, ये बोटेनिकल चीज है, जूलॉजिकल चीज भी देख लो थोड़ा, कि लोग क्या गा रहे थे। अकबर भी सुनने जाता था धीरे से, पंडित जी को, जो तानसेन के गुरु थे, हरि प्रसाद जी, ठीक है, और चुपके से सुनते थे। आज 150 साल पहले ग्रामोफोन नहीं था, लेकिन लगभग 125 साल पहले ग्रामोफोन था। कितने लोगों ने गौहर जान का सुना है क्लासिकल म्यूजिक? किसी ने नहीं, कोई नाम भी नहीं जानता होगा। कोई नाम नहीं जानता है तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग था, हमको जानना चाहिए? शायद जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो उसे जान रहा है, मुझे होगा शायद, इसलिए मैं उनका नाम जान रहा हूं, आपको नहीं, इसलिए आप नहीं जान रहे हैं। मेरा ये कहना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता हो इस वर्ड को, यही शायद सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं। थैंक यू। इस पर मेरा एक टिप्पणी है। अगर आप लोग नाट्य शास्त्र जानते हैं या भरतनाट्यम जानते हैं, हम अपने कल्चर की जब बात करते हैं, या इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्यों ज़रूरी है आपके करिकुलम में आना, बिकॉज अगर हम अपने बच्चों को ये फ्रीडम नहीं देंगे कि आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे एनएसएस, एनसीसी, डांस, स्पोर्ट्स, योगा में जब आपको ब्रीद इन सिखाया जाता है तो आपको साइंस सिखाया जा रहा है। कैसा साइंस? बिकॉज साइंस कहता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच डिफ्यूजेस ऑक्सीजन, जो बॉडी में आपके ऑक्सीजन लेवल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। आपका रेस्पिरेशन का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन। ऐसे नहीं आएगा जब तक आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम को करिकुलम में इनकलकेट करके मैंडेटरीली आपको बताया जाए कि प्लीज़ मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स को ये देकर कि आप इस चीज़ को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, आगे कैरी ऑन करना। गुरुकुल में भी यही सिखाया गया था कि हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को आगे कैरी करना ये आपका धर्म है। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम में योगा होना चाहिए, आपके करिकुलम में योग होना चाहिए, वरना आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी का, कि ब्लड का प्रॉपर फ्लोट होना, कितना बीमार होते हैं हम लोग, क्यों होते हैं? कभी गहरी सांस लिए? नहीं। रेस्पिरेशन कंप्लीट ही नहीं किया है आपने, यू हैव नॉट कंप्लीटेड रेस्पिरेशन। कभी दौड़ा है, कभी स्पोर्ट्स खेला है? नो। जो खेलते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, जो नहीं खेलते उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। हमारे जो भरतनाट्यम में इशारों से सिखाते हैं डांस, ये क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज इट हैज़ टू बी टोल्ड कि जेस्चर्स मैटर्स अ लॉट। सिर्फ एक्शंस मैटर नहीं करते, आपके जेस्चर्स मैटर करते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, एनीथिंग। Thank you. I think we have had a sufficient discussion on this topic, and we have almost touched all the aspects of Indian knowledge system. So on behalf of NEP Cell, I extend my heartfelt gratitude to both the panelists, Dr. Doshi and Dr. Prashant sir, for being with us, for sparing a time with us.